ओके 5.2 एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कल लास्ट जो टाइप था उसमें पढ़ा था कि इन एन एपी द जनरल टर्म दैट इज an इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d इसके इक्वल होता है where a is the first term of the ab and d is the common difference in the ab. This is the common difference and n is the number of term. N is number of term. This is n and an is the value of nth term, any term, value of nth term. उस नंबर पे जो भी टर्म होगी उसकी वैल्यू है an. Okay, this is about the general term of an AP. किसी AP में एक जनरल टर्म फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला था an equal to a plus n minus 1 into d. अभी हम आगे जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज सम ऑफ n terms of an AP. This was the general term, nth term of an AP. Now we are starting about sum of n terms of an AP. Sum of n terms Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula to find the sum of n term of an AP. किसी AP में n terms का sum find करने के लिए for example let us suppose we have the AP 1 3 5 7 9 11. This is the AP. If we want to find the sum, what is a? N by 2. N is number of term is 6. 6 by 2 into 2 multiply a. A is the first term. N minus 1. N is number of term. 6 minus 1 into d is the common difference. A2 minus A1 2. तो यहाँ से हम इसका sum find कर सकते हैं. We can find the sum of an AB from here. So this is the formula to find the sum of it. And also this formula can be reduced to one more form, that is n by 2 into this 2a. We can write it as a plus a plus n minus 1 into d. ऐसे लिख सकते हैं इसको. और a plus n minus 1 into d ये फॉर्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था. This is the formula for what? This is the formula for an. This is an. We can also write an as L. an को हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. an को हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. In that case, sum of n terms of AB is n by 2 into a plus L. This can also be the formula to find the sum of n terms of an AB. This is also according to the situation we will use the formula. जो सिचुएशन होगी उसी हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करेंगे. Okay, this is the formula to find the sum of n terms of an AP. Now we are starting the exercise. Exercise 5.3 and the exercise is find the sum of the following AP. First question, first part. 5.3 exercise, first question and first part. The question is find the sum of the following AP. We have to find the sum. AP is 2, then 7, then 12. This is the AP and there are 10 number of terms. Number of terms is 10. We have to find the sum of this AP. And to find the sum, we must know the formula. Formula is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करने के लिए हमें इसका रॉ मटेरियल चाहिए, मींस a, d और n की वैल्यू चाहिए. व्हाट इज a in an AP? We know that a is the first term of AP, that is 2. What is d? D is the common difference, means second term minus the first term, which is 5. And what is n? N is the number of terms in an AP, total number of terms. Here given that 10 terms are there. Question में mention है इसमें number of terms 10 होगी, तो sum find करना. Put up the value. n by 2 is 10 upon 2 into 2a. A is 2 plus n minus 1 means 10 minus 1 into d. D is 5. We can simply calculate it. 10 by 2 cancel होगा, it will be 5. 2 multiply 2 is 4 plus
1 is 9, and 9 into 5, 45. So we want it is 5 multiplied 49. Multiply करो 5 को 49 से कितना होगा 245. This is the sum of the given AP. ये हो जाएगा इस AP का sum 245. This is the value of the sum of the AP. Similarly, you can find the second part, which is minus 37, minus 33, minus 29 up to 12 terms. A इसमें minus 33 है. D आप फाइंड कर सकते हो. D क्या होगा? A2 minus of A1 means minus 33 minus minus plus 37. So D इसमें बन जाएगा plus 4. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में D4 होगा. A minus 37 है और N given है. Similarly, इसका थर्ड पार्ट आप निकाल सकते हो. बिल्कुल इजी है. So first question you can easily solve the first question. Now the second question is same, but there is a slight difference. Second question, find the sum of AP. AP का sum find करने के लिए अपने पास सीरीज क्या है? We have 7 plus 10 and a half plus 14 plus, and this series up to last one is 84. We have to find the sum of this AP. जब लास्ट टर्म गिवन हो तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था. ऐसा मींस n/2 into a plus l. ये फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं. l मींस लास्ट टर्म हमें पता है 84. a हमें पता है फर्स्ट टर्म ये 7, बट n नहीं पता. इसमें n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो पहले n फाइंड करना पड़ेगा. और n फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, we will use formula of an, which is a plus n minus 1 d. Here is a plus n minus 1 into d. What is a? A is the first term, which is 7. What is d? D is the common difference, is second term minus first term. Second term में 10 and half. इसको सिंप्लीफाई करें तो 20 और 1, 21/2 minus first term means 7. और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 minus 14 upon 2 means 7 upon 2. This is the common difference d. So we have a is 7, d is 7 upon 2, and an means last term is 84. Put up everything. an is 84 equals to a plus n minus 1 into d is 7 upon 2. Now simplify it. Taking this 7 on the left side. 84 minus 7 equal to n minus 1 into 7 upon 2. Minus को 84 minus 7. What is 84 minus 7? It is 77. 7/2 इसको हम लेफ्ट साइड लेंगे, क्या हो जाएगा? 7/2 को लेफ्ट साइड लेंगे तो taking 7/2 on the left side. मल्टीप्लाई है प्लस 7/2 2/7 बन जाएगा. 7 से कैंसिल 77 by 11. So we get 11 into 2 20 11 n minus 1. Okay, minus 1 1 को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा. n is equals to 23. n की वैल्यू आ गई हमारे पास, बट क्वेश्चन में n नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द सम. बट क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द सम. sum हमें इसका फाइंड करना है सम ऑफ एबी. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला फॉर सम. Sn is n/2 into, अब चाहो तो 2a plus n minus 1d यूज कर लो या a plus n, क्योंकि n भी है हमारे पास तो वही पुट कर लेते हैं. n/2, n कितना है 23 upon 2 into a plus n. a is 7, n last term is 7 so we find it is 23 upon 2 into 84 plus 7, it is 91. So we can multiply it. 91 multiply करो 91 और 23 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 2093.
divided by 2. This is the sum of the given AP, given series. ये बन जाएगा इसका sum. Okay. So we can find the sum of AP. सम फाइंड करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल ए एन और डी सबकी वैल्यू चाहिए। तो इसमें एन नहीं था तो पहले हमें ए एन का फॉर्मूला यूज करके पहले एन फाइंड करना पड़ा और उसके बाद फिर सम ऑफ द सीरीज निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई चीज मिसिंग है तो हो सकता है वो किसी दूसरे फॉर्मूले की हेल्प से निकाली जाए और फिर उसमें यूज की जाए। जैसे यहाँ पे एस एन निकालने के लिए अपने पास एन नहीं था तो पहले हमें ए एन के फॉर्मूले से एन फाइंड आउट करना पड़ा, उसके बाद उसका यूज सम ऑफ एबी में यूज करना पड़ा उसका। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज given A is 5, D is 3, AN is 50, find N and SN. A is 5, D is 3 and AN is 50. We have to find N and SN. सेम वही क्वेश्चन जो अभी किया था, अभी भी यही तो किया था हमने। AN के फार्मूले से N निकाला और फिर N से SN। AN का फार्मूला लगाया A प्लस N minus 1 into D. Put up the value of everything. AN is 50 equals to A is 5 plus N minus 1 into D. D is 3. सेम यही चीज तो हमने लास्ट क्वेश्चन में की है, तो सेम उसी पैटर्न पे हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, यू कैन सॉल्व इट इजीली। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट में करा देता हूं आपको। सेकंड पार्ट सिर्फ और सिर्फ चीजें आइडेंटिफाई करनी है, सब कुछ गिवन है। सेकंड पार्ट A is given as 7, A13 is given as 35. Find S13 and D. D फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है। ओके, चलो A13 है, अब इसको कंपेयर करें AN से, तो N कितना बड़ा आपके पास 13 हो गया ना, इसमें N कितना बड़ा 13। तो A13 के लिए पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, A13 के लिए A प्लस 13 माइनस 1 इंटू D, यही बनता है ना फॉर्मूला। AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, तो A13 का मतलब A प्लस 13 माइनस 1 इंटू D। पुट अप द वैल्यू, A13 की वैल्यू गिवन है 35, it is equals to A plus 12 into D. Now it can be solved easily. 7 को इधर लाते हैं, 35 minus 7 equal to 12 into D. 35 में से 7 माइनस होगा, 28 equals to 12 into D, और D equals to 28 upon 12। 4 से कैंसिल, 4 से ये 7 पे कैंसिल, ये 3 पे, so we find D is 7 upon 3। D आ गया हमारे पास, और जब D आ चुका है, एक तो D फाइंड करना था, अब निकालना है SN। SN का फार्मूला N by 2 into 2A plus N minus 1 into D। पुट अप कर दो वैल्यू, S13 equal to 13 upon 2, 2 into A, A की वैल्यू है 7, तो 2 into 7 प्लस 13 माइनस 1 का मतलब 12 into D, और D की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया, दैट इज 7 upon 3, 7 upon 3। तो इस 3 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो वी फाइंड 13 upon 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14, ये होगा 4 into 7 28, so we find it is 13 upon 2 into 14 plus 28, 42, ये कैंसिल 21 पे मल्टीप्लाई करो 13 को 21 से, दैट विल बी योर आंसर। कितना होगा 273, दैट इज द सम ऑफ 13 टर्म। Similarly, you can find the third question, you can solve it easily। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसका फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में करा रहा हूं इसका। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन इज
A3 is equals to 15. A3 is equals to 15 and S10 equal to 125. S10 equal to 125. Then find D and A10. D find करना है और A10 find करना है. We have to find D and A10. इसके लिए हमें A और D पता होना चाहिए, बाकी सारी चीज तभी निकलेगी. A और D हम दोनों की हेल्प से निकालेंगे. A3 के लिए फार्मूला क्या जाएगा? A plus 2D. AD is equals to 15. इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी. S10 की वैल्यू 125 है. S10 का फार्मूला 10/2 into 2A plus 10 minus 1 into D. AD equals to 125. यही होगा. S10 के लिए फार्मूला SN का n/2 into 2A plus n minus 1 into D. इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है. यहाँ से 2 से 10 कैंसिल 5 2A plus 10 minus 1 is 9D equal to 125. इस 5 को इधर ले जाते हैं, डिवाइड हो जाएगा. So we find that it is 2A plus 9D equal to 5 से 125 को कैंसिल करेंगे. 5 को 125 के साथ कैंसिल करेंगे. कितना बचेगा? 25. Now this is the equation number 2. Now solve equation 1 and 2. Find the value of A and D. तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. क्या मिलेगा? क्योंकि इसमें 2A होगा और इसमें भी 2A होगा, तो कैंसिल होगा. It is 2A plus 2 multiply 2 is 4D equal to 2 multiply 15 is 30. And the second equation implies that 2A plus 9D equals to 25. Subtracting them, this is minus, minus, minus. 2A will cancel out with the 2A. 4A plus 9A, 4D plus 9D minus, it will be minus 5D. 30 plus 25 minus, it will be 5 plus. Now D find करें तो क्या हो जाएगा? 5 upon minus 5. 5 से minus 5 कैंसिल होगा, minus 1. So we find D is minus 1. D की वैल्यू कितनी आ गई? minus 1. अब A की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, तभी हम बाकी चीज निकाल सकते हैं. A की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में पुट कर दो. पुट इक्वेशन नंबर 1. So we find A plus 2 into D. D की वैल्यू minus 1 है. Equals to कितना है? 15. तो A minus 2 equal to 15. 2 को इधर ले जाए क्या हो जाएगा? प्लस. तो 15 plus 1 17. A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी. Now we have to find A10. A10 का फॉर्मूला A plus 10 minus 1 into D. A की वैल्यू है 17. 10 minus 1 का मतलब 9 into D की वैल्यू minus 1. So it is 17 minus 9 means 8. This is A10. This is A10 and this is D. ये दोनों चीज निकालनी थी, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. This will be your answer. Okay? तो कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही फॉर्मूले के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज घूम रही है, पूरी एक्सरसाइज चल रही है. दो ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं शुरू से आखिरी तक. इसी थर्ड क्वेश्चन में से फिर बाकी आई थिंक आप लोग कर लोगे. मैं एक ही क्वेश्चन और बता देता हूं इसमें से. क्वेश्चन नंबर 10. थर्ड क्वेश्चन का 10th पार्ट. Third question, 10th part. If L is given as 28, 5.3 exercise, third question, 10th part. L is given as, L means the last term is given as 28. Last term is 28. S sum of the AB, S is given as 144. Sum of AB is 144. There are total 9 terms. Find A. Total term. Total number of term means N.
लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब an इक्वल टू 28 है। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 18 इक्वल्स टू 28। हमें पता है इसमें n कितना है, n है 9, तो n की वैल्यू यहां पुट कर दो, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 28 और a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 28। इट इज इक्वेशन नंबर 1। देन नाउ इसके बाद अपने पास क्या है, s sum of ab means sn is given as 144। now apply the formula for sn का फार्मूला n by 2 into a plus n minus 2a plus n minus 1d, वो भी लगा सकते हैं, बट इसमें l अपने पास पता है तो हम l का ही लगा लेते हैं, a plus n ये लगा दो, it is equals to कितना है 144, l की वैल्यू पुट कर दो इसमें, so n by 2, n कितना है 9 upon 2 into a हमें नहीं पता, ओके, l लास्ट टर्म हमें पता है कितना है 28, it is equals to 144। नाउ इस 2 को और 9 को उधर ले जाते हैं, क्या बन जाएगा, a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 144 था, यहां से 2 राइट साइड जाके मल्टीप्लाई और 9 डिवाइड, 9 से 144 को कैंसिल करेंगे, किस पे कैंसिल होगा, 16 पे, सो a प्लस 28 इक्वल्स टू 16 into 2 32, so we got a is 32 minus 28 means a is equals to 4। a तो आ गया, अभी d और फाइंड करना है इसमें, ओ सिर्फ a फाइंड करना था, सिर्फ a फाइंड करना है तो इस इक्वेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, अगर a फाइंड करना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस से ही निकल जाएगा ये, ओनली a फाइंड करना है, अगर d फाइंड करना होता तो उस इक्वेशन की जरूरत पड़ती, तो हम सीधा सिर्फ यही से निकाल सकते हैं इसको, ओके, दिस इज a, ये बन जाएगी इसमें a की वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे इसका कंप्लीट हो जाता है। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स मींस नंबर ऑफ टर्म्स, ये पूछा गया, नंबर ऑफ टर्म्स मींस n, वी हैव टू फाइंड n। क्वेश्चन को सबसे ध्यान से पढ़े, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन करने का, उसकी रीडिंग ध्यान से लेना, उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया और क्या गिवन है, ये चीजें सबसे ध्यान से पढ़नी होती है, उसके बाद हमें उसमें सारा मटेरियल उसमें मिल जाएगा, सिर्फ उसको क्लब इन क्लब आउट करना होता है। सो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। AP is given as 9, 17, AP is 9, 17, AP is 9, then 17, and then next term is given as 25, 9, 17, 25. It is 9, 17, 25. This is the AP. Question is, how many terms must be taken? We have to find number of terms so that the sum is, what is the sum? 636. Sum is 636. Sum of the AP is 636. How many terms must be taken? We have to find n. So what is given? A is given as 9. What is common difference D? A2 minus A1, 17 minus 9 means 8. Sn is 636. We have to find number of terms. And simply apply the formula of Sn. Sn is given as 636. Formula is n by 2 2a plus n minus 1 into d. It is given as equal to 636. Sn का formula लगाएंगे n by 2 2a plus n minus 1 into d. Now put up the value of everything. n given नहीं है, फाइंड आउट करना है, 2 into a is 9 plus n minus 1 into d is 8, it is equals to 636। यहां से n को फाइंड करना है तो n को यहीं रखो, 2 को उधर ले जाओ या इसको सिंपलीफाई कर दो, n upon 2
अंदर क्या हो गया 2 into 9 18, 8 को n से करेंगे 8n, 8 को 1 से करेंगे 8 इक्वल टू 636। अब यहां से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट n by 2 into 8n, तो ये हो गया प्लस 18 और माइनस 8, इट विल बी प्लस 10, 636। इस पूरे में से चाहे तो हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने से बेनिफिट क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन कट हुई है इजीली खत्म हो जाएगा। सो वी फाइंड n अपॉन 2, अंदर से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 निकाल दिया कॉमन, 8n को डिवाइड किया 4n और 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5, 636। अब ये 2 से 2 कैंसिल, n को 4n से मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर, n को 5 से मल्टीप्लाई 5n, 636 को लेफ्ट साइड जाते हैं माइनस हो जाएगा। नाउ इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या था अपने पास, या तो फैक्टराइजेशन करो या फिर बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या तो फैक्टराइजेशन करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या करोगे, बोलो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a कितना होगा इसमें 4, b कितना होगा इसमें 5 और c कितना होगा 636। a is 4, b is 5 and c is minus 636। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई a, 4 मल्टीप्लाई c माइनस 636 अपॉन 2a, 2 into 4, so equals n equal to minus 1 plus minus root of 25, this is root of 25 minus minus multiply plus 4 into 4 into 636, इसकी मल्टीप्लाई कर लो कितनी होती है, देखो मल्टीप्लाई करके जल्दी से कितनी होती है, इसका फैक्टराइजेशन से करेंगे तो आपकी ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें अभी रूट भी निकालना पड़ेगा इससे, इसको फैक्टराइजेशन कर लो वो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें करोगे तो इसका रूट भी निकालना पड़ेगा। आई थिंक फैक्टराइजेशन विल बी मोर इजी। फैक्टराइजेशन करते हैं पहले 636 और 4 की मल्टीप्लाई, 636 into 4 कितना होगा 4 into 636, 4 पर 6 से 24, 2 12 into 14 1 2544। अब ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस होना चाहिए 5 माइनस है ना, तो डिफरेंस 5 हो और मल्टीप्लाई 2544 हो, क्योंकि 2500 के आसपास है तो 50 और 50 की मल्टीप्लाई 2500 होती है, उसके आसपास के फैक्टर बनने चाहिए। चलो 50 के आसपास से फैक्टर बनने के लिए वो डिफरेंस 5 होता है, तो 50 और 45 इसका डिफरेंस 5 होता है, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई कितनी बड़ी 520, ये बड़ी 2250 कम है। आगे चलिए 51 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 6 की मल्टीप्लाई लास्ट में 6 आएगा, अपने को लास्ट में 4 ये नहीं होगा। उसके बाद 52 मल्टीप्लाई 47, 52 को 47 से करते हैं तो लास्ट में 4 चाहिए, देखो क्या आ रहा है 47 से 4 ही आ रहा है, एक की मल्टीप्लाई तो 52 और 47, 7 को 2 से 14 1 35 और 36, उसके बाद 4 को 2 से करते हैं तो 8 और 4 को 5 से 20, इट विल बी 4 5 5644। 53 भी 48 से करके देखो, 53 को 48 से, इसको भी 4 और 3 की मल्टीप्लाई 8 होती है, 8 3 जा 24, 2 8 5 जा 40 and 2 42, then 4 को 3 से 12 1 20 and 1 21, so 4 is 4 5 2 11 2544 सही फैक्टर बनाए। 53 और 48 ये दो फैक्टर बनेंगे, 53 and 48, तो 4n स्क्वायर एक फैक्टर 48n और एक 53n,
और लास्ट में -636 इक्वल टू 0। अब यहां से ग्रेटर टर्म के साथ ये वाला साइन आता है, ये प्लस, क्योंकि डिफरेंस है तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा। अब पहले दोनों टर्म्स में से 4n कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा n, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे 12 बचेगा, इसको डिवाइड करते हैं इससे होगा 53, मान लो कॉमन आउट करते हैं तो 53 से n और ये 12 मान लो। So we got 4n plus 53 into n minus 12 equal to 0। और एक बार n की वैल्यू -53/4 आती है, सेकंड टाइम n equal to 12, दिस विल बी रिजेक्ट। याद रखना n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इसलिए n equal to 12 हो जाएगा इसका आंसर। So number of term will be 12। इस सीरीज में जो नंबर ऑफ 12 टर्म है वो 12 बन जाएगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4।